Good morning to everyone. Today I am Preeti Gupta, Assistant Professor in AKGEC Engineering College in the Department of Computer Science and Engineering. Today I am going to give a lecture on design analysis of algorithm on the topic of string matching algorithms. First of all, I would like to tell you what is the string matching. Basically, in string matching, what we are doing to match some pattern, given pattern. Let consider A, B, C, D with some text string. For example, the text string can be any pattern, given pattern of the character. This is C, B, any given pattern, and you have to match this pattern with the text string. For example, the real world example of the string matching is on Google search engine. When you are searching some string on your web, when you are searching some your pattern, your sentence or your word in your web, what are you doing? You are doing the pattern, you are doing the matching with the text given in the web. So this is called the string matching. And today here we are going to discuss some of the algorithm which are using in this type of matching. So we are going to discuss, the two main algorithm. The first one is Naive string matching algorithm. Naive string matching algorithm, and the second one is Kooth-Morris Pritt algorithm. Why in this lecture, why we are considering only these two algorithms? Because these two algorithms are related to each other. The first one is Naive string matching algorithm and the second one is Kooth-Morris Pritt algorithm. Basically, the Kooth-Morris Pritt algorithm it overcomes the disadvantage of the Naive string matching algorithm. How it overcome the disadvantage? Let me discuss in the next slide. First of all, we are discussing the Naive string matching algorithm. What is Naive string matching algorithm? Naive string matching algorithm. The Naive string matching algorithm is the basic algorithm of string matching. It matches the pattern with text by character. For example, let the text is equal to A, B, A, B, C, A, B, and the pattern is A, B, C. For example, the text given here is A, B, A, B, C, A, B, and the pattern given is A, B, C. What you are doing in the Naive string matching algorithm, in this algorithm or by using this algorithm, we match the pattern with the text by character. For example, one by one, we match the pattern with the text value, and after getting the match, we conclude that the pattern found in the text, or if the match not found, we conclude that the pattern does not find in the text given text value. So now we check or how we numerically perform this Naive string matching algorithm. Okay.
So we come, this is given pattern and this is given text. We have to find this value. And before coming to the calculation, we come to the next we come to the one more concept is shift. What is shift? Shift is basically how much shifting or how much moving, how much move the pattern requires to match with the text string. For example, let me solve this example and we come out this shift value. We start with the matching. First character with this character. Let me change the color. Okay, we match this A with this value. We find the matches. So we move to the next character and we match the second character of the pattern with the second character of the text. This is B and B, and in the next time we found the search that this pattern of B found in the text string. Next time the third string, the third character of the text compare with the third character of the pattern. In this time, this A value and this C value does not matches. So we shift the pattern one to the right side and the pattern value is A, B, C. Means now the pattern moves one terms to the right side. Initially the pattern index is 1 and the text index is also 1. But when the search search is not found, when the search is not successful, so we move the pattern to the right hand side and now the pattern character matches with the second character of the text. This is null out. Okay. So now this again search starts. This B, now the second character of the text matches with this first character of the pattern. This B matches with this A, and in the initial stage the B does not matches with the A. B A से आपका नहीं मैच कर रहा है. In that case again we shift the pattern to the right side and again the B pattern comes to this side, one character to the right side. एक character हम right side में move कर देंगे जब भी हम pattern text से match नहीं करेगा. So again and this becomes null out. This becomes null out. In the third pass we compare, let me change the color. In the third pass we compare this character, third character of the text with the first character of the pattern. This compare with this. This is match. So we match the next character of the pattern to the next character of the text. This time the B and B match. The search is successful. In the next case the C matches with this C and again C matches with the text string. So in this case we found the pattern string found in the text string with shift is equal to 2. Why shift is equal to 2? Because we shift the pattern string 2 times. 1 times here, 1 times here, and this is third time when the search becomes successful. So this is not countable. After shifting 2 character right side, we found the search, the pattern string in the text string. ठीक है.
तो दिस इज द बेसिक एल्गोरिथम, दिस इज द बेसिक स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम in which we compare the character of the pattern with the text string character by character. हम एक एक करके वैल्यूज को मैच कराते हैं और फिर देखते हैं कि अगर वैल्यूज मैच कर गई हैं तो इट इज ओके, और अगर कैरेक्टर नहीं मैच करे हैं तो हम पैटर्न स्ट्रिंग को एक कैरेक्टर राइट साइड में मूव कर देते हैं. ठीक है, तो दिस इज द naive string, this is the basic algorithm. Next, come to the next algorithm, and the next name is the Kuth-Morris-Pratt algorithm. The short form of this algorithm is KMP. In most of the textbook or in web search you can find the KMP algorithm or KMP matcher algorithm. What this algorithm and how this algorithm overcome the disadvantage of the naive algorithm. Let me talk about the brief of the naive algorithm. I have already told you in naive algorithm what we are doing the character by character match of the text pattern string to the text string. So if the same pattern, for example, like the pattern is A B C A B, ठीक है, this A B comes 3 times. This A B comes 3 times. So this A B, if we are doing this matching with the help of naive algorithm, तो हमें ये 3 टाइम्स परफॉर्म करना पड़ेगा. हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पर स्ट्रिंग मैचिंग परफॉर्म की, वही सेम स्ट्रिंग के लिए हम यहाँ सेकेंड टाइम परफॉर्म करेंगे, वही सेम स्ट्रिंग के लिए हम यहाँ थर्ड टाइम परफॉर्म करेंगे. तो क्योंकि ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मूव करता है, तो अगर सेम पैटर्न कह लीजिए या सेम कैरेक्टर्स पैटर्न में नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं या मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं, तो हमें उसको मल्टीपल टाइम्स सॉल्व करना पड़ता है या फिर हमें सर्च करना पड़ता है. बट अगर तो इससे हम क्या है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द naive string matching will increase. The time complexity of naive string matching, शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं naive string matching will increase. तो इससे naive string मैचिंग की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपकी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि हम सेम काम को मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म कर रहे हैं. अगर कहीं ऐसा होता कि इस मैचिंग की जो भी आंसर है या जो भी सोल्यूशन की वैल्यू है, हम कहीं इसको स्टोर कर लें एक टेबल में, अगर हम इसको कहीं स्टोर कर लें एक टेबल में हम किसी नाम लिख देते हैं, एक टेबल में अगर हम इसको स्टोर कर लें, तो नेक्स्ट टाइम जब भी ये सेम कैरेक्टर या सेम पैटर्न अकर करेगा तो उसकी वैल्यू हम वहां से उसको फेच कर लेंगे और हमें मल्टीपल टाइम्स इस सेम टास्क को नहीं परफॉर्म करना पड़ेगा. तो इससे क्या होगा, हमारी जो रनिंग टाइम ऑफ द एल्गोरिथम है या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम है वो आपकी इंप्रूव होगी. That's why we can conclude that Kuth-Morris-Pratt algorithm is an improvement over naive string matching algorithm. So let me talk about what is table and how we make this table. So let me come to the next slide. Okay. ठीक है, अब ये जो KMP मैचर है ये किस तरह से टेबल का क्रिएशन करता है या कैसे टेबल को हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक, और उस टेबल को हम क्या कहते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल को क्रिएट करने के लिए हमें 2 कंसेप्ट पता होने चाहिए, प्रीफिक्स और
सफिक्स का। ये प्रीफिक्स क्या होता है और सफिक्स क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रिंग इज ए बी ए सी डी बी। ठीक है, अब इसका इस स्ट्रिंग का हमें प्रीफिक्स फाइंड आउट करना है और सेम ही स्ट्रिंग का हमें सफिक्स भी फाइंड आउट करना है। तो प्रीफिक्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या निकालेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड से मूव कर देंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड से मूव करेंगे और एक एक कैरेक्टर के का पेयर बनाते चलेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से मूव करेंगे और एक एक कैरेक्टर का पेयर बनाते चलेंगे। तो इसका पहला प्रीफिक्स क्या होगा, इट विल बी ए। द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज ए बी, द नेक्स्ट इज ए बी ए सी एंड सो ऑन। ठीक है, तो प्रीफिक्स लिखने के लिए इस गिवन एग्जाम्पल का प्रीफिक्स हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। In the same way, when we want to find the suffix of this string, to find the suffix, we have to move from the right hand side. अब इसी सेम स्ट्रिंग से अगर हम राइट हैंड साइड को मूव करना स्टार्ट करें या राइट हैंड साइड से चलना स्टार्ट करें और एक एक कैरेक्टर का पेयर बनाते हुए चले, तो वो हमें आपको सफिक्स प्रोवाइड करता है, लाइक बी, DB, CDB, ACDB and so on. Fine. तो इस तरह से हम किसी गिवन स्ट्रिंग का प्रीफिक्स और सफिक्स फाइंड आउट करते हैं। With the help of this prefix and suffix, we are going to find or we are going to produce the table for the KMP matcher algorithm. ठीक है, तो अब हम इसका एक टेबल बनाते हैं, उसका नाम होता है विच इज नोन एज पाई टेबल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स फंक्शन और LPS। इसके ये तीन नाम हो सकते हैं, इन तीनों नाम से आपको देखने को कहीं पर भी मिलेगा, कहीं आपको पाई टेबल के नाम से मिल जाएगा या कहीं आपको लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स फंक्शन मिल जाएगा या कहीं कहीं आपको LPS के नाम से भी देखने को मिलेगा। सो ये तीनों एक ही टेबल के नाम है, एक ही टेबल के तीन अलग अलग नाम है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो तो हम ये अब स्टार्ट करते हैं कि ये पाई टेबल कैसे जनरेट होती है या कैसे बनती है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में या फिर अगर हम आपके सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन योर सेमेस्टर एग्जाम मोस्ट ऑफ द टाइम आपको प्रीफिक्स टेबल, प्रीफिक्स फंक्शन या LPS फाइंड आउट करने को आता है कि आपको एग्जाम में ये पूछने को मिलेगा कि फाइंड आउट द प्रीफिक्स फंक्शन फॉर द गिवन पैटर्न। ओके, और बहुत ही रेयर टाइम होता है कि ये आपको क्वेश्चन पूछने को आए कि यू हैव टू फाइंड द number of shift to find the to match the this pattern with the text string। तो ये शिफ्ट निकालने को बहुत ही कम नंबर ऑफ टाइम्स आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आता है कि हमें फाइंड आउट करना होता है कि ये पाई फंक्शन जो है वो आपका क्या है। ठीक है, कि ये जो आपका पाई फंक्शन है वो क्या होगा। ठीक है, तो अब इस पैटर्न का हमें पाई फंक्शन निकालना है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो पाई फंक्शन है वो हमेशा और हमेशा एक पैटर्न का ही निकलता है, क्योंकि हमने देखा नेव स्ट्रिंग मैचिंग में हमने देखा कि पैटर्न में ही जो है वो सेम कैरेक्टर्स मल्टीपल टाइम्स अकर करते हैं। तो उन कैरेक्टर्स की
सॉल्यूशन देखने के लिए, या उन कह सकते हैं, या उन पैटर्न का क्या अप्रोच था, या किस पर्टिकुलर इंडेक्स पर वो अकर किए थे, ये देखने के लिए हमें इसकी टेबल बनानी होती है, ना कि टेक्स्ट स्ट्रिंग की टेबल बनानी होती है। तो दिस इज वन ऑफ द नोट पॉइंट कि पैटर्न स्ट्रिंग का ही आपका पाई टेबल जनरेट होगा। लेट वी जनरेट द पैटर्न पाई टेबल ऑफ दिस पैटर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल we write the index of this pattern. Okay, so it starts from 1 2 3 4 5 6. There are 6 characters in this given pattern. ठीक, अब हमें इसका क्या बनाना है, पाई टेबल। यहां पाई वैल्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हमें स्टार्ट करना है इनिशियल कैरेक्टर ए से। ठीक है, हमने इस कैरेक्टर ए से स्टार्ट किया और इसकी मैचिंग जो है 1 बाय 1 कैरेक्टर से की। इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी इनिशियल कैरेक्टर है उस इनिशियल कैरेक्टर की वैल्यू हमेशा यहां पर 0 होगी। द पाई वैल्यू ऑफ द initial character is always 0. So we place 0 in front of A. हमने A के नीचे यहां पर 0 पुट कर दिया। And now we initiate this K, और हमने इस K को स्टार्ट किया। K को स्टार्ट किया तो, और K हमने एक वेरिएबल ले लिया जो हमेशा कहां पर होगा, उस कैरेक्टर के नीचे होगा जिस कैरेक्टर से हम मैचिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, जिस कैरेक्टर से हम मैच कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने ए को 0 किया क्योंकि ए इनिशियल कैरेक्टर है, और इसी के नीचे हमने के को रखा क्योंकि के एक वेरिएबल है जो ये बता रहा है कि किस कैरेक्टर से हमको मैच करना है। ठीक है, नाउ वी मैच और वी कंपेयर ए विथ बी। हमने ए को बी से मैच करना स्टार्ट किया। ए डज नॉट मैचेस विथ बी, ए बी से मैच नहीं कर रहा है, इस वजह से हमने बी की वैल्यू भी यहां पर क्या पुट की, 0, क्योंकि ए जो है वो बी से मैच नहीं कर रहा है। दैट्स वाई बी की वैल्यू भी क्या होगी, यहां पर 0 होगी, और के की वैल्यू एज इट इज यहीं पर रहेगी क्योंकि अभी मैचिंग जो है वो आपकी नहीं मिली है। अब क्या किया, थर्ड टाइम हमने ए को ए से मैच किया, ए को थर्ड कैरेक्टर से मैच किया, एंड इन दिस टाइम यू फाइंड द मैचिंग। इस समय तुम्हें जो है वो मैचिंग मिल गई। व्हेन यू फाइंड द मैच, यहां पर आप नोट में लिख सकते हैं, जब फाइंड हो जाता है मैच, व्हेन यू फाइंड मैच देन प्रीवियस वैल्यू में एक ऐड करके आप यहां लिख दीजिए। प्रीवियस ए की वैल्यू क्या है, 0, प्रीवियस वैल्यू क्या है, 0 है, तो अब 0 में हमने 1 ऐड किया और यहां पर प्लेस कर दिया। ठीक है, यहां पर बात क्लियर है, ध्यान से देखिए, क्योंकि ए जो इनिशियल कैरेक्टर था इसलिए हमने इसको यहां सिंपली 0 पुट कर दिया, और के एक वेरिएबल लिया जो ये बता रहा है कि हमें किस कैरेक्टर से मैच करना है और कौन सा कैरेक्टर मैच कर रहा है। ए को बी से मैच कराया, मैचिंग नहीं मिली है। जब मैचिंग नहीं मिली है तो एज इट इज हमने इसके यहां 0 पुट किया, जो वैल्यू थी, क्योंकि मैचिंग नहीं मिली है तो यहां 0 ही पुट किया। फिर इस ए को इस ए से मैच किया, क्योंकि अभी के क्या है, इसी के नीचे है, तो हमने इस ए को इस थर्ड ए से मैच किया। मैचिंग हमें फाइंड आउट हो गई। जब मैचिंग फाइंड आउट हो गई तो उसकी जो प्रीवियस वैल्यू है, उसकी किसकी, यानी कि ए की जो प्रीवियस वैल्यू है उसमें आप 1 ऐड करके लिख देंगे। तो यहां पर 1 ऐड करके लिखा, 0 + 1 दैट इज 1। ये आपको क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि प्रीवियसली एक बार ये ए जो कैरेक्टर है वो स्ट्रिंग में मिल चुका
है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि यहां पर ये मैचिंग फाइंड आउट हो गई है, दैट्स व्हाई वी प्लेस 1 हियर। हमने इसको यहां पर 1 रख दिया है। और जैसे ही मैचिंग मिल गई वैसे ही k की वैल्यू जो है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी, k की वैल्यू बढ़कर यहां चली आएगी, k की वैल्यू हो जाएगी यहां, जहां से आपकी मैचिंग जो है वो आपको फाइंड आउट हो गई है और k यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने क्या किया, अब इस a को मैच कराया इस C से, A मैचेस विथ C, नो, सो वी प्लेस 0 हियर। हमने यहां पर क्या कर दिया, 0 कर दिया। A जो है वो आपका C से नहीं मैच किया है। अगेन V मैचेस A विथ B, A को B से अब हमने मैच कराया। दिस टाइम अगेन ये मैचिंग आपको नहीं मिली है, तो हम यहां क्या लिखेंगे, 0। ठीक, एंड अगेन A को हमने D से मैच कराया, ये भी आपको मैचिंग नहीं मिली है, तो हम यहां लिखेंगे 0। ठीक है, तो ये आपकी टोटल वैल्यू क्या हो गई, पाई टेबल गया, पाई वैल्यू हम बोल सकते हैं, पाई वैल्यू विल बी दिस। तो हम इस तरह से आपकी पाई वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये सबको क्लियर है। अब हम इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा भी हम एक एग्जांपल इसका ले सकते हैं। पैटर्न P इज गिवन एज A B A B D। ठीक है, जो पैटर्न है वो आपका कुछ इस तरह का दिया गया है, A B D। ठीक है, अब इस पैटर्न का पाई वैल्यू निकालना है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसकी इंडेक्स वैल्यू को लिख लेंगे। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, इसकी इंडेक्स वैल्यू को लिख लिया। अब पाई वैल्यू निकालने के लिए इनिशियली पहली वैल्यू जो होती है वो बाय डिफॉल्ट क्या होती है, वो 0 होती है। तो हमने इसको क्या किया, यहां पर 0 प्लेस कर दिया। फिर उसके बाद और यहीं पर आपका क्या होगा, k होगा। k पहले भी मैंने बता चुका है, k जो होता है वो आपका वेरिएबल होता है, जो ये बताता है कि हम किस कैरेक्टर से मैच अपना स्टार्ट कर रहे हैं या किस कैरेक्टर से हमें मैचिंग करनी है। तो A की इनिशियल वैल्यू 0 है, A मैचेस विथ B, A को हमने B से मैच करना स्टार्ट किया। मैच नॉट फाउंड, दैट्स व्हाई वी प्लेस 0 हियर। हमने A को भी 0 रख दिया, B को भी 0 रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अब हमने A को A से मैच कराया। A को A से क्यों मैच कराया, क्योंकि K की वैल्यू अभी A के नीचे है, इसलिए हमने A को A से मैच कराना स्टार्ट किया। जैसे ही हमने A को A से मैच कराया वैसे ही आपको यहां मैचिंग देखने को मिल गई कि ये वाला कैरेक्टर जो है इस वाले कैरेक्टर से आपके मैच कर रहा है। एंड व्हेन मैच फाउंड वी ऐड 1 इन द प्रीवियस वैल्यू। इस A की प्रीवियस वैल्यू क्या है, ये 0 है, तो इसकी प्रीवियस वैल्यू में 1 ऐड करके हम लिख देंगे। ये 1 क्या सिग्निफाई कर रहा है, फिर से एक बार, कि ये 1 ये सिग्निफाई कर रहा है कि दिस ए कैरेक्टर एक बार पहले भी अकर कर चुका है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पाई टेबल। ये पाई टेबल आपको अकरेंस ऑफ द कैरेक्टर बताता है कि कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर जो है कितनी बार पैटर्न में आ चुका है। अगर वो मल्टीपल टाइम्स प्रीवियसली ही अकर कर चुका है तो हमें नेक्स्ट टाइम उसके लिए एग्जीक्यूशन करने की जरूरत नहीं है, हम केवल
पाई टेबल में से उसकी वैल्यू को उठाएंगे और अपने क्वेश्चन में यूज कर लेंगे या अपने आंसर में जो है उसको यूज कर लेंगे। तो हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर a की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। फिर जैसे ही मैच फाउंड हुआ तो अब k की वैल्यू यहां से हट जाएगी, जहां पर मैचिंग फाइंड आउट हुई है वहां पर इसकी k वैल्यू हो जाएगी। जहां अब इस कैरेक्टर से हमें मैचिंग यहां मिली है ना, तो जब मैचिंग यहां मिली है तो k की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, तो अब k की वैल्यू ये हो गई। तो अब a को b से हमने मैच कराया। अब जब a को b से मैच कराया तो क्या है, आपकी मैचिंग नहीं फाइंड आउट हुई है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगी वैल्यू, यहां पर आपकी the k will be this and the next time the value will be this. The k value will be next character means जैसे ही हमने यहां पर मैचिंग मिल गई तो k की वैल्यू जो है वो एक इंक्रीज कर जाएगी। k will be increased by 1। जैसे ही मैचिंग मिल जाएगा वैसे ही k की वैल्यू जो है वो एक इंक्रीज कर जाएगी। तो पहले k यहां था, अब k यहां चला जाएगा। अब जैसे ही k यहां चला गया तो अब हमने मैचिंग यहां से स्टार्ट की, b को b से मैच कराया। जब b को b से मैच कराया तो क्या हुआ, b को b से मैच कराया तो हमारी मैचिंग फाइंड आउट हो गई। एज मैचिंग फाइंड आउट हो गई है तो हमने क्या किया, इसकी जो प्रीवियस वैल्यू है उसमें एक ऐड करके लिख देंगे। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। ठीक है, तो फिर से 1। अब b को हमने b फिर से यहां मैचिंग हो गई तो अब k हट के हो जाएगा यहां पर। ठीक है, अब k जब हट के यहां हो गया तो हमने a और d को मैच कराया। a और d जो है वो आपस में नहीं मैच कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। तो इस तरह से ये आपका जो होगा वो पाई वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का होगा। ठीक है, तो हमने यहां पर दो एल्गोरिथम पढ़ी है। पहली है नेव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम और दूसरी है आपकी केएमपी स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम। सो these two algorithms are categorized under string matching algorithm, and these two algorithms are basic of string matching algorithm, and KMP matching algorithm is the overcome the disadvantage of the naive string matching algorithm. Thank you.